So, good evening, everybody. So, this is the first lecture for economics of the online class. Yesterday, due to some technical issues, this class couldn't be uploaded, but we are uploading it now for your convenience as you can go through it. The online class and the offline class will have no connections. The online class is just for the revision purpose, although the offline class will be taking place for the same subjects. Apart from that, apart from that, when we are studying the first chapter, second chapter of economics, as you know, we follow a trend or we follow a pattern that after the class gets over, we will be having a test based on which you have to answer the questions whatever has been taught to you in the PDF. Now the test is already given. I don't know, most of you have answered it or not, but now since the class is uploaded, I want you to go through the class and then attempt the test again. Also, as promised, today we'll uploading the second class after a gap of 1 hour. So the second class of economics will also be uploaded. Similar test will be given for that. Attempt the test and you'll get the results at the end of this week. So without getting delayed, let's get started. What are we going to teach or what are we going to study in this section is what economics is, central problems of economics, what is a production possibility curve, branches of economics. Then we are going to see different types of sectors in economy. Then we are going to see sector in terms of ownership and work condition. Then we are going to see five types of economic system that persisted since the time human beings came to the world, came to the earth. Then we are also going to see what is the circular flow of economy, what are factor payments, what are this factor payments and factors of production. Then apart from that, some three sector model and the four sector model and other classifications in the economies. Before getting delayed, just want to mention that what I have told you before, kindly take down the notes of the things that I have marked as important in your copy so that during the time of exam you can just revise through it. So let's get started. Now, what is economics? Again, very simple, very basic definition of economics. As you all know, that it is a social science dealing with how resources are allocated to people. Now, it's a study of how people and societies decided to use their limited resources. So, as you all know, resources limited hoti hai. There is no endless supply of money, time, and stuff. They are limited to a certain extent, and that is the reason why we have to make choices in our life, what resources to pick and choose and what to leave aside. So economics explores these choices. It tries to understand why people, businesses, and government make the decisions they do. It helps us to analyze why the government or the people or the businesses have taken this particular step. So it looks at how things are made, shared, and used. Very, very important point. So economics deals with how things are made, shared, and used. Now, what are the central problems of economics? So there are three central problems: what to produce, क्या बनाना है; how to produce, कैसे बनाना है; and किसके लिए बनाना है, for whom to produce. Now, what to produce के अंदर क्या आता है? Relates to section of goods to be produced according to market analysis and consumers demand. कहने का मतलब है आप क्या बनाने वाले हो अपनी इकोनॉमी में, वो कैसे डिसाइड करेंगे? वो डिसाइड किया जाएगा सिलेक्शन ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, कि कौन से गुड्स हम लोग बनाने वाले हैं. कैसे डिसाइड होगा? मार्केट एनालिसिस करके कि उस प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई कितनी है. एंड सेकेंडली, कंज्यूमर का डिमांड क्या है, कंज्यूमर को उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि नहीं. अब जब ये डिसाइड हो गया क्या बनाने वाले हैं, हम लोग डिसाइड करते हैं कैसे बनाने वाले हैं. तो रिलेट्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, कौन सी टेक्निक यूज करने वाले हैं वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए. या तो वो लेबर इंटेंसिव होगा या वो कैपिटल इंटेंसिव होगा. दोनों में डिफरेंस क्या है? लेबर इंटेंसिव बेसिकली वो होता है जिसमें लेबर की ज़्यादा यूज़ होती है, कैपिटल यानी कि मशीनरी का कम यूज़ होता है. एंड कैपिटल इंटेंसिव से समझ में आता है कि जिसमें मशीनरी का ज़्यादा यूज़ हो रहा है एज कम्पेयर टू लेबर. तो आप किसी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे मशीन्स, वहाँ पे सॉफ्टवेयर, वहाँ पे हार्डवेयर ज़्यादा यूज़ होता है. बट एज कम्पेयर टू दैट, जब आप किसी कॉटन की मिल में जाओगे या जूट की मिल में जाओगे, वहाँ पे लेबर का काम ज़्यादा है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन
लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. सो हाउ टू प्रोड्यूस में समझ में आ गया कि कौन से तरीके यूज करेंगे, क्या हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग ये चीज किसके लिए बना रहे हैं. तो अब एक सोसाइटी में बहुत पैसे वाले लोग भी रहते हैं और बहुत पुअर लोग भी रहते हैं. अब अलग अलग इकोनॉमीज, अलग अलग कंट्रीज की डिमांड के हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे. वो कैसे डिसाइड किया जाएगा किस टाइप से प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, कि उस देश की इनकम कितनी है वहां पे, और दूसरा वो प्रोडक्ट या वो सर्विसेज बनाने के लिए रिसोर्सेज कितनी है. सो कहने का मतलब है, अगर मैं आईफोन बनाना चाहता हूं तो आई विल बी नीडिंग दोज चिप्स, वी विल बी नीडिंग दोज सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, विल बी नीडिंग दोज हार्डवेयर्स. सो अकॉर्डिंगली जहां पे ये सब चीजों की रिसोर्सेज की कमी है वहां पे आईफोन बनाना बिकम्स एन एक्सपेंसिव अफेयर. एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द इनकम की इनकम कैसी है उस पर्टिकुलर इकोनॉमी की. अगर ज्यादा अफ्लुएंट कंट्री है वहां पे ज्यादा हायर इनकम लोग रहेंगे और वो लोग की डिमांड ज्यादा प्रीमियम होगी एज कम्पेयर टू अ लोअर इकोनॉमिक कंट्री जहां पे लोगों की प्रीमियमनेस की डिमांड कम होती है, वो बेसिक नेसेसिटीज को अपनी पूरा करना चाहते हैं. आगे चलते हैं. तो अभी हम लोग देखते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. तो जब हम लोग बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, तो सिलेक्शन ऑफ गुड्स की जब हम लोग बात करते हैं कि क्या प्रोड्यूस किया जाएगा और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तो उसमें एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एक 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 निजात किया गया था. तो या तो हम लोग इकोनॉमीज में, अगर हमारे पास इतना लॉग ऑफ वुड है, क्योंकि ये लॉग ऑफ वुड लिमिटेड है, इसकी जो सप्लाई है लिमिटेड है, या तो हम लोग गन्स बना सकते हैं या हम लोग चेयर्स बना सकते हैं. अब ये किस पे डिपेंड करेगा कि गन्स बनाएंगे या चेयर्स बनाएंगे. पहला, इनकम पे, और वो कंट्री कौन सी है. अब कोई बहुत अफ्लुएंट कंट्री है जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप गन बना के क्या खरीद करोगे जब कोई वो गन्स को खरीदेगा नहीं. बट कोई ऐसी कंट्री जहाँ पे वॉर जोन में है, जहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, जहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है, वहाँ पे दूसरी कंट्री अटैक कर रही है, उस कंट्री में आप डेफिनेटली गन्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे. सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड. एंड ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें बताता है कि या तो हम लोग 3 गन्स बना सकते हैं और एक चेयर बना सकते हैं. सिमिलरली यहाँ पे अगर 2 चेयर और होती और यहाँ पे 3 चेयर और होती, तो हम लोग या तो एक गन बना सकते हैं, 3 चेयर बना सकते हैं, और या तो 2 गन बना सकते हैं और 2 चेयर बना सकते हैं. सो इसीलिए ये बताया जाता है ये जो कर्व बनता है दिस इज कॉनकेव इन नेचर. ये जो कर्व बनता है अपॉर्चुनिटी का, ये आपका कॉनकेव है. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कर्व जो बनता है वो कॉनकेव है नेचर में. सो ये बेसिकली डिसाइड करने के लिए कि क्या प्रोड्यूस किया जाएगा और कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, उसके बेसिस पे ये थोड़ा बहुत प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिलेट करता है. नाउ मूविंग अहेड, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स. तो आपने जंगल देखा होगा, जंगल में आपने पेड़ देखे होंगे. तो जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, जो इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस है, तो जब हम किसी एक इंडिविजुअल पेड़ की बात कर रहे हैं कि उसमें कौन सा टाइप का लीफ लगता है, कौन सा टाइप का फ्रूट आता है, किस टाइप की उसकी बार्क है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्री फ्रॉम द माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. बट जब हम लोग इस ट्री की मल्टीपल ट्रीज की बात करते हैं, इस ट्री के बारे में जब वो मल्टीपल ट्रीज की बात करते हैं जो फॉरेस्ट में है, तो एक फॉरेस्ट में इस टाइप की 15 ट्री है. तो जब हम लोग इन ट्रीज की बात करें, वी आर टॉकिंग फ्रॉम द मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. दोनों में इतना ही डिफरेंस है, माइक्रो एंड मैक्रो. सो माइक्रो से वी आर टॉकिंग फ्रॉम द इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, मैक्रो से वी आर टॉकिंग फ्रॉम द होलिस्टिक, फ्रॉम अ बिगर पिक्चर पॉइंट ऑफ व्यू. तो इसी को ही अगर और डिटेल में जाके देखें तो स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, स्टडी ऑफ इकोनॉमी, वाइड फेनोमेना, बड़ी पिक्चर की देखने की बात करते हैं कि सोसाइटी में इन्फ्लेशन कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, नेशनल इनकम कितना है, नेशनल आउटपुट कितना है. वो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं. जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लेबर इकोनॉमिक्स, डिसीजंस ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स, हाउ डिमांड एंड प्राइसेस आर डिटरमाइंड इन द इंडिविजुअल मार्केट, डिसीजंस ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड, डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर. इंडिविजुअल की बात करें तब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक पॉइंट से बात कर रहे हैं. आगे चलते हैं. इंडिया के इकोनॉमिक सेक्टर को अगर हम लोग डिवाइड करने जाए तो 3 तरीके से डिवाइडेड है. प्राइमरी ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी से, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. ये जो क्वार्टरनरी एंड क्विनरी है ये टर्शरी के अंदर ही आता है. जब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशंस की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जब हम लोग बात करते हैं तो बेस्ड ऑन द वर्क कंडीशन डिवाइड किया जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ एसेट ओनरशिप की जब हम लोग बात करते हैं प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में, तो ये 2 तरीके से डिवीजन किया गया है. अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी देख लेते हैं. तो प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होता है, अगर मैं ऐसा पिरामिड बनाऊं, अगर मैं बताऊं कि इतने लोग हैं हमारी कंट्री में, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज करते हैं. और प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या होता है,
एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो हम जब नेचर से जब रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज का पार्ट है। तो आप बताओ क्या क्या एग्जाम्पल होगा प्राइमरी सेक्टर के अंदर? फार्मिंग हो गया, माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, दीज आर द पार्ट ऑफ फॉरेस्ट्री हो गया प्राइमरी एक्टिविटी जिसमें मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन इन्वॉल्व है। जब हम लोग आते हैं सेकेंडरी या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इसमें क्या होता है, जो गुड्स को प्रोड्यूस किया गया था फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग ने एक्सट्रैक्ट करी थी, अब उसमें से जो गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग जो करी जा रही है, दैट इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी। प्लस एक जगह से दूसरी जगह इस गुड्स को जो भेजा जा रहा है जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन भी आता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेकेंडरी एक्टिविटी। सो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, रिफाइनिंग ऑयल, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, क्रिएटिंग मोर यूजफुल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये सारा आपका सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। नाउ कमिंग टू टर्शरी और द सर्विस सेक्टर, इसमें क्या आता है आपका, सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है, से फॉर एग्जांपल बैंकिंग सर्विस, हेल्थ सर्विस, फूड सर्विस, एजुकेशन सर्विस, रिटेल स्टोर्स की जो सर्विस हो गई, रिटेल स्टोर्स, ये फूड सर्विसेज, ये सब जो सर्विसेज हो गई, दीज आर द पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर, जहां पे आप किसी भी को भी एक कोई टैंजिबल गुड नहीं दे रहे, किसी को भी एक ऐसा सामान नहीं दे रहे जिसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है, रैदर आप उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। नाउ जब हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जब आप किसी बार्बर के पास बाल कटाने जाते हो तो वो भी आपको सर्विस दे रहा है, और आप जब एक बैंकर के पास बैंकिंग सर्विसेज लेने जाते हो वो भी आपको सर्विस दे रहा है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये दोनों लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं, इन दोनों की लेवल ऑफ सर्विसेज अलग अलग है, इसकी एक्सपर्टीज ज्यादा है एज कम्पेयर टू हिम। सो जब हम लोग हायर सर्विसेज की बात करते हैं तो यहाँ पे दो और डिवीजन आ जाते हैं, क्वार्टरनरी एंड क्विनरी। हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्विसेज का आता है क्विनरी, जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स हो गए, आईएएस ऑफिसर्स हो गए, पॉलिसी मेकर्स हो गए। और क्वार्टरनरी में अगेन क्विनरी से कम बट टर्शरी सेक्टर्स के जो बड़ी सर्विसेज होती है जैसे बैंकिंग सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज, ये सारा आपका क्वार्टरनरी एक्टिविटीज का पार्ट है। नाउ कमिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कर रखा है, तो यू कैन सी हियर सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो सर्विसेज का कितना कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में मैन फोर्स सबसे ज्यादा ऑल्डो ऑक्यूपाइड है प्राइमरी सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा मैन फोर्स ऑक्यूपाइड है, बट सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में वो कहाँ से आता है, वो आता है टर्शरी सेक्टर से, जबकि जो सबसे कम कंट्रीब्यूशन होता है वो आपका प्राइमरी सेक्टर से होता है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ ओनरशिप के ऊपर कि किसकी ओनरशिप है, तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हो गई जो गवर्नमेंट की ओन है, से फॉर एग्जांपल ओएनजीसी हो गया आपका, भेल हो गया आपका, अभी जैसे कि हमारे यहाँ पे एनआरएल नुमोलीगढ़ रिफाइनरी हो गया, फिर हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, जो भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, ये सारी जो गवर्नमेंट ओन्ड है उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर जैसे कि रिलायंस हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, सैमसंग हो गया, ये सारा आपका प्राइवेट सेक्टर के अंदर ओनरशिप के अंदर डिनोट किया जाता है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को। उसके बाद जब हम लोग आते हैं बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिवाइडेड है, तो वन इज ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनदर वन इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में सब कुछ ऑन पेपर्स फॉर्मल तरीके से किया जाता है, यानी कि आपको पेड लीव्स दी जाती है, आपको इंसेंटिव दिया जाता है, आपके पास प्रोविडेंट फंड का एक ऑप्शन है, मटर्निटी लीव दी जाती है, आपके अलग अलग तरह के पर्क्स दिए जाते हैं, बट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है। बट ये चीज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, वहां पे आपको काम पे कभी भी निकाला जा सकता है विदाउट एनी नोटिस। निकाला तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी दिया जा सकता है, बट एक प्रॉपर नोटिस, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू निकाला जाएगा। तो आप फोटो से समझ पा रहे होगी ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस क्या है। जो मेड आपके घर में काम करती है शी इज अ पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वेर एज जो बैंक में काम कर रहा है आदमी, दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। आई होप दिस इज क्लियर। तो जैसे कि हम लोग ने देख लिया टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में, हम लोग टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में आते हैं। तो इकोनॉमिक डिविजन देख लिए बेस्ड ऑन एक्टिविटीज, बेस्ड ऑन ओनरशिप एंड बेस्ड ऑन वर्क कंडीशंस। अब हम लोग टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में आते हैं ऑन द बेसिस ऑन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है इकोनॉमी में, कंट्री में, तब हम लोग बोलते हैं उसको डेवलप्ड या डेवलपिंग। तो आपको पता है कि हमारा देश डेवलपिंग इकोनॉमीज का पार्ट है। और अगर हम लोग डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करें तो यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये सारी आपकी डेवलप्ड इकोनॉमीज है। अब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इसका क्या मतलब हुआ, तो
कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है which is owned, controlled and operated by प्राइवेट प्लेयर्स, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है जब उनको ओन, कंट्रोल एंड ऑपरेट करते हैं प्राइवेट अथॉरिटी, उस टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कैपिटलिज्म। जब मोड ऑफ प्रोडक्शन को ओन, कंट्रोल एंड ऑपरेट करता है गवर्नमेंट, सरकार करती है, उसको हम लोग बोलते हैं सोशलिज्म। और जब दोनों का मिक्सचर हो, मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी कि इकोनॉमी में क्या बनेगा, कितनी मात्रा में बनेगा, किस तरीके से बनेगा, वो जब सरकार अलॉन्ग विद प्राइवेट प्लेयर्स डिसाइड करती है, उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। अब जब हम लोग आगे चलते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज दैट व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज दैट प्रिमिटिज्म क्या होता है, फ्यूडलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या होता है। सो प्रिमिटिज्म मीन्स पुराने जमाने में, लोग बाग एग्रीकल्चर करते थे। वो क्या करते थे, हमारे पास ऐसे आज के दिन में जो टेक्नोलॉजी है या जो इक्विपमेंट्स हैं वो तो थे नहीं। तो अर्ली मैन क्या करता था, अपनी फैमिली के साथ वो एक लैंड पे जाता, वहाँ की रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता, वहाँ पे फार्मिंग करता। जब वो जगह खराब हो जाती तो वो दूसरी जगह मूव करता। तो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ सर्वाइवल था जहाँ पे रिसोर्सेज आर ऑफन शेयर्ड विद इन अ फैमिली और अ ट्राइब, फोकस्ड ऑन मीटिंग द बेसिक नीड्स थ्रू हंटिंग, गैदरिंग एंड बेसिक एग्रीकल्चर। तो अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक जगह पे आता, वहाँ पे उस जगह की रिसोर्सेज को यूज करता और बाद में निकल के दूसरी जगह आ जाता, जब उसकी जगह को उस वहाँ पे सारी रिसोर्सेज यूटिलाइज हो जाती। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था प्रिमिटिज्म का, वो अपनी सेल्फ सफिशिएंसी और कम्युनल लिविंग, मतलब अपना पेट भरने के लिए काम कर रहा था। वो जो चीज जो बना रहा था या जो भी रिसोर्सेज क्रिएट कर रहा था उसको वो शेयर नहीं कर रहा था। इवेंचुअली क्या हुआ, जब आयरन का डेवलपमेंट हुआ और लोगों ने एग्रीकल्चर को और अच्छे से करना स्टार्ट कर दिया, तो एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म बेसिकली कहने का मतलब है दीज आर द लॉर्ड्स, जो लैंड ओनिंग क्लास होती है और इनके नीचे बहुत सारे पीजेंट्स काम करते हैं। तो जो जैसे जमींदार हो गए बड़े बड़े, वो उनकी बड़ी बड़ी जमीन होती थी, और फ्यूडल लॉर्ड्स जो होते थे, जो ये जमींदार होते थे, यहाँ पे अपने लोगों को, पीजेंट्स को काम करने देते थे। अब दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग क्या थी कि पीजेंट्स उसके यहाँ पे काम करेगा और उसको एक्सचेंज में क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा और शेयर मिलेगा प्रोड्यूस का, जो भी वो यहाँ से उगाता है उसका शेयर मिलेगा और प्रोटेक्शन मिलेगा। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ टू इकोनॉमिक system that prevailed in the early centuries. बट इस टाइप के सिस्टम में प्रॉब्लम क्या थी, हायरार्कियल सोशल स्ट्रक्चर था विद लैंड ओनरशिप के पास बेसिस ऑफ पावर था। तो सारी पावर किसके पास थी, जिसके पास लैंड हो उसी के पास ओनरशिप, उसके पास ही ताकत थी। उसके बाद क्या आया, कैपिटलिज्म का एक कॉन्सेप्ट आया जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इसमें रिसोर्सेज को और इसमें मार्केट फोर्सेस क्या करती हैं, ड्राइव करती हैं कि किस टाइप से रिसोर्सेज को बनाया जाएगा, कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, किसको दिया जाएगा। सो रिसोर्स एलोकेशन कैसे होगा मार्केट आपका कैपिटलिज्म में, ये मार्केट फोर्सेस डिफाइन करता है। फ्यूडलिज्म में कौन डिसाइड करता था, कंट्रोल्ड बाय लॉर्ड जिनका लैंड है। और प्रिमिटिज्म में रिसोर्स एलोकेशन कौन डिसाइड करता था, बेस्ड ऑन ट्रेडिशन एंड सर्वाइवल, अपने इंडिविजुअल नीड के हिसाब से करते थे। बट कैपिटलिज्म में क्या हो गया, रिसोर्स एलोकेशन कैसे होने लगा, बेस्ड ऑन मार्केट में क्या अब रिक्वायर्ड है, मार्केट में किस चीज की सप्लाई और डिमांड है। इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस ओन रिसोर्सेज एंड मेक प्रोडक्शन डिसीजन, कि आज के दिन में इंडिया में ज्यादा हम लोग को मोबाइल फोन्स या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी या मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाने की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो रिसोर्स एलोकेशन होगा ये कैपिटलिज्म में इस तरीके से किया जाता था कि मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती थी क्या बनाया जाएगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। सोशलिज्म में अगेन क्या हुआ, ये एक मिक्स है बोथ प्राइवेट ओनरशिप का और गवर्नमेंट की ओनरशिप का, जहां पे बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट फोर्सेस डिसाइड करती हैं क्या बनाया जाएगा, किस क्वांटिटी में बनाया जाएगा और किसके लिए बनाया जाएगा। और कम्युनिज्म में क्या होता है, टोटल कंट्रोल होता है सरकार का, सरकार डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर
whom to produce, किसके लिए बनाया जा रहा है. Now जब हम लोग सोशलिज्म की बात करते हैं, अ मिक्स ऑफ मार्केट फोर्सेस एंड गवर्नमेंट प्लानिंग, सम रिसोर्सेज आर प्राइवेटली ओन्ड एंड अदर्स आर ओन्ड कलेक्टिवली. या कुछ कुछ यहाँ पे प्राइवेटली ओन की जाती है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा, कुछ कुछ कलेक्टिवली ओन करी जाती है. अब प्रोडक्शन कैसे होता है, एम्स टू मीट, सोशलिज्म का काम क्या, नाम से ही सोसाइटी सोशलिज्म रिलेट कर पा रहे होगे. तो प्रोडक्शन क्या होता है, सोशल नीड्स को मीट करने के लिए किया जाता है, और इनइक्वालिटी, जो अलग अलग भेदभाव है लोगों में, इनइक्वालिटीज है, उसको कम करने के लिए, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, उसको इंश्योर करने के लिए सोशलिज्म अपनाया गया था. तो हमारा जो अर्ली जब हम लोग इंडिपेंडेंस लिए थे, तो नेहरूवियन सोशलिज्म हम लोग ने अपनाया था. नेहरूवियन सोशलिज्म, जहां पे बोला गया था कि गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होगा, अलोंग विद इंडस्ट्रीज भी सेटअप करी जाएंगी. नाउ प्रोडक्शन डिसीजंस आर मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट प्लानिंग एंड मार्केट टेक्निक, मार्केट मैकेनिज्म. प्रोडक्शन कैसे डिसीजन लिया जाएगा, कॉम्बिनेशन गवर्नमेंट की प्लानिंग के थ्रू और मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू. की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बैलेंस मेंटेन करने की बात करते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम में अलोंग विद सोशल वेलफेयर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कम्युनिज्म में है उसमें रिसोर्स एलोकेशन क्या होगा, वो कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है. वो डिसाइड करती है क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, कितना प्रोड्यूस किया जाएगा, और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा. इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्टेट ओनरशिप होती है रिसोर्स ऑफ ऑल रिसोर्सेज, एंड सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, मतलब सेंटर डिसाइड करती है, सरकार डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस. तो अगर मैं इकोनॉमिक सिस्टम्स को अगर मैं इस तरीके से किसी चार्ट में रखूं, तो आप देख पा रहे होगे, एक्सट्रीम राइट में आपका है कैपिटलिज्म, जिसमें फ्री मार्केट्स है, नो गवर्नमेंट कंट्रोल. सोशलिज्म somewhere comes in the middle actually, and here comes communism extreme left में, प्योर प्लान्ड इकोनॉमी, पूरा सरकार का कंट्रोल है. तो बहुत जगह सोशलिज्म और कम्युनिज्म को साथ साथ भी यूज किया गया, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग. एंड मिक्स्ड इकोनॉमीज में जैसे कंट्रीज आ गई, जैसे हमारी इंडिया हो गई, जो हम लोग प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट ओनरशिप के मॉडल पे काम करते हैं. तो सोशलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख पा रहे होगे, प्लान्ड मार्केट हो गया, पब्लिक ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इक्वालिटी मोटिवेटेड, सरकार को जो भेदभाव है उसको खत्म करना है. सोशलिज्म में क्या हो गया, सम कंट्रोल ऑफ मार्केट, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ओनरशिप दोनों होती है, प्रॉफिट भी होता है और टैक्सेस भी कलेक्ट करे जाते हैं. कैपिटलिज्म में क्या होता है, फ्री मार्केट होता है, कंपटीशन होता है, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, कंप्लीटली प्रॉफिट मोटिवेटेड होता है. अब हम लोग सेम वही चीज, मार्केट इकोनॉमीज ऑन द लेफ्ट हैंड, शुड बी इन द राइट हैंड साइड. आई थिंक थोड़ा सा इसमें कुछ कंफ्यूजन, वो पिक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया. मिक्स्ड इकोनॉमी समवेयर कम्स इन बिटवीन. तो मार्केट इकोनॉमी को कैपिटलिज्म बोला गया है, कमांड इकोनॉमी को सोशलिज्म या कम्युनिज्म बोला गया है, और मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कमांड एंड प्राइवेट मार्केट इकोनॉमी. इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि बोथ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मार्केट इकोनॉमी का प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगी, फ्रीडम ऑफ चॉइसेस रहेगा, मोटिवेटेड सेल्फ इंटरेस्ट रहेगा, कंपटीशन रहेगा, लिमिटेड गवर्नमेंट रहेगी. मिक्स्ड में क्या होता है, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की प्रेजेंस रहेगी, को एग्जिस्टेंस, इकोनॉमिक इनक्वालिटीज के साथ साथ प्रॉफिट भी रहेगा, सरकार का मोटिव, और गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड कंट्रोल रहेगा थोड़ा बहुत प्राइवेट के ऊपर. गवर्नमेंट प्राइवेट की कंपनीज के साथ मिलकर काम करेगी. तो अगर मैं इंडिया के टर्म्स में एग्जांपल देने जाऊं, दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम. तो यहाँ क्या है, आपने रेलवेज में देखा होगा, इवन दो इंडियन रेलवेज इज अंडर इंडियन गवर्नमेंट, बट अंडर द इंडियन रेलवेज जो खाना प्रोवाइड किया जाता है या जो सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है, दैट इज डन बाय द प्राइवेट प्लेयर्स. सिमिलरली जो सरकार रोड्स एंड हाईवेज बनाती है, ये रोड्स एंड हाईवेज बनाने का काम इवन तो है रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की, बट ये गवर्नमेंट क्या करती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे फॉरवर्ड कर देती है प्राइवेट प्लेयर्स को, सो दैट वो जल्दी जल्दी वो रोड्स बना के खत्म करें, एंड इवेंचुअली गवर्नमेंट विल पे देम. नाउ कमिंग टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी. नाउ सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी क्या है, अब आप चीज एक देख पा रहे होगे इस फिगर में, एक है हाउस होल्ड्स, एक है फर्म्स. कहने का मतलब है, ये मान लो यू आर दीज पीपल हियर, एंड ये आप लोग की काम करने की जगह है. तो हाउस होल्ड्स क्या करता है, आपका फर्म्स को, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है. व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो होते हैं जो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए काम किए जाते हैं. तो क्या क्या होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सबसे पहले आपको प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, एक जमीन चाहिए, लैंड. अब लैंड के ऊपर आपको क्या चाहिए, एक
फैक्ट्री चाहिए, उसमें मशीनरी चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। दूसरा आपको क्या चाहिए, अब जो आपके पास फैक्ट्री आ गई, आपके पास मशीनरी आ गई, अब आपको क्या चाहिए, वहां पे काम करने के लिए लेबर चाहिए। और लेबर के अलावा इन सबको मैनेज करने के लिए क्या चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर चाहिए, एंटरप्राइज चाहिए। दीज आर द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और जब ये फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब आपके लिए काम करेंगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, इनको पैसे देने पड़ेंगे, फ्री में तो करेंगे नहीं। तो लैंड को जब हम लोग हायर करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, रेंट पे करते हैं। कैपिटल के लिए हम लोग क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। लेबर को हम लोग क्या देते हैं, वेजेस देते हैं। और एंटरप्रेन्योर को हम लोग क्या देते हैं, प्रॉफिट्स देते हैं। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नाउ जब ये हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है फर्म्स को, फर्म्स क्या करती है, उनको वेजेस देती है, रेंट देती है, डिविडेंड्स हो गया, आपको स्टॉक्स के ऊपर मिलता है तो डिविडेंड्स देती है। बदले में जब ये लोग यहाँ पे काम करते हैं फर्म्स में, तो यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज कौन यूज करता है, हाउस होल्ड यूज करता है। अब क्योंकि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड यूज कर रहा है, हाउस होल्ड क्या करता है, इन वापस फर्म्स को पैसे पे करता है। दैट इज ये एक उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज जो बनाई है इन फर्म्स में, वो कंज्यूम भी हाउस होल्ड कर रहा है। दैट इज द रीजन वाई द हाउस होल्ड हैज टू पे द फर्म्स इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर की, जो उनका खर्चा हो रहा है कंज्यूमर्स का। सो ये एक सिंपल टू सर्कुलर इकोनॉमी का टू सेक्टर मॉडल हो गया, जहां पे दिखाया गया है कि गुड्स सर्विसेज इनकम स्पेंडिंग कंटिन्यूसली मूव थ्रू एन इकोनॉमी। दो मेन कंपोनेंट हो गए, हाउस होल्ड हो गया एंड फर्म्स हो गए। दे ओन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड क्या करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन करते हैं, जैसे मैंने बताया। फर्म्स क्या करती हैं, दे परचेज और रेंट दीज रिसोर्सेज फ्रॉम द हाउस होल्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो रिसोर्सेज हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर कौन करता है, फर्म्स करती है। और बदले में उनको पेमेंट करती है किस हिसाब से, फैक्टर पेमेंट्स के हिसाब से। Household provide their resources to business, business pay income to the household spend this income on goods and services। अब क्योंकि हाउस ने वहां काम किया, गुड्स एंड सर्विसेज बनाई, अब गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कौन करेगा, अगेन हाउस ही करेंगे, तो वो उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। द स्पेंडिंग बिकम्स रेवेन्यू फॉर द बिजनेस। और ये चीज जो खर्चा जो हाउस कर रहे हैं जहाँ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए फर्म्स के ऊपर, फर्म्स का ये क्या हो गया, एक तरह का रेवेन्यू हो गया। अब इंपॉर्टेंट टर्म जैसे कि मैंने आपको बताया, लैंड दैट इज योर रिसोर्स यूज्ड इन प्रोडक्शन, लेबर जो लोग बाग चाहिए, कैपिटल टूल्स इक्विपमेंट फैक्ट्री जो चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज, ये चीजों को ऑर्गेनाइज करने की बात काम को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट के अंदर आता है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर फैक्टर पेमेंट्स विच इज अंडर द एम्बिट ऑफ दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हम लोग रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट पे करते हैं। दीज आर बेसिकली द पार्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करने के तरीके को रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट बोलते हैं। अब टू सेक्टर इकोनॉमी कुछ ऐसा दिखता है। हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सपेंड ये आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बदले में उनको क्या मिलता है, बदले में उनको गुड्स एंड सर्विसेज मिलती हैं फैक्ट्री से। अब क्योंकि उनको गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही हैं, तो ये इनका क्या हो रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो कंज्यूम कर रहे हैं इस चीज को। और बिकॉज ये कंज्यूम कर रहे हैं इस चीज को, ये इनका बिजनेसेस का क्या हो रहा है, इनका ये रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। नाउ अब हम लोग टू सर्कुलर इकोनॉमी में तो समझ गए कि हाउस होल्ड से फैक्टर्स ऑफ पेमेंट जा रही है आपका फर्म्स के लिए, फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है हाउस होल्ड, जिसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, इन रिटर्न उनको पे कर रहा है। अब जो हम लोग थ्री सेक्टर में चले गए, जहां पे गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, वो कुछ ऐसा दिखता है जहां पे एक फाइनेंशियल मार्केट भी आ गया, यानी कि एक बैंक आ गया। और यहाँ पे हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं, हाउस होल्ड अपनी सेविंग्स को बैंक में रख रहे हैं, और बहुत सारे हाउस होल्ड बैंक से बोरोइंग भी करते हैं। सिमिलरली जो फर्म्स हैं वो भी क्या कर रही हैं, वो भी बोरो कर रही है हाउस फाइनेंशियल मार्केट से, और अपना पैसा सेव कर रही है। सेम सरकार भी क्या करती है, सेविंग करती है फाइनेंशियल मार्केट्स में और बोरो करती है। अब सरकार को, हाउस होल्ड को सरकार को क्या देना पड़ता है, ट्रांसफर पेमेंट, टैक्स पेमेंट्स देनी पड़ती है कि आप हम लोग का, आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। सरकार लोगों को, हाउस होल्ड को ट्रांसफर पेमेंट्स करिए। ट्रांसफर पेमेंट्स मतलब इस टाइप की पेमेंट जो आप कोई काम करे बगैर करते हो। से फॉर एग्जांपल आपको बर्थडे में गिफ्ट मिलता है, यू गॉट दिस गिफ्ट,
विदाउट गेट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ सर्विस। आप जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, आप किसी तरह का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, किसी तरह का कुछ सामान दे रहे हो, बदले में आपको फैक्टर पेमेंट्स मिल रही है। बट आपके बर्थडे वाले दिन जो आपको गिफ्ट मिलता है, आप लोगों को जो सब्सिडी मिलती है, जो सरकार फ्री में राशन देती है गरीबों को, वो एक तरह का ट्रांसफर पेमेंट हो गया, यानी कि इस टाइप का पेमेंट जो बिना किसी सर्विसेज के दिया जाता है। एट द सेम टाइम सरकार क्या करती है, सरकार भी हाउस होल्ड की फैक्टर सर्विसेज को यूज करती है, एंड इन रिटर्न सरकार भी क्या करती है, फैक्टर पेमेंट्स देती है। अब हाउस होल्ड वाला तो सिस्टम आ गया, हाउस होल्ड क्या करते हैं, फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को, बदले में उनको यू नो फैक्टर फैक्टर पेमेंट्स देनी पड़ती है हाउस होल्ड्स को। और क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाया वो दोबारा हाउस होल्ड्स कंज्यूम कर लेते हैं, तो उसको हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सरकार क्या करती है फर्म्स के साथ, फर्म्स को सब्सिडाइज, फर्म्स को सबसे पहली बात सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, और पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी सरकार फर्म्स की गुड्स एंड सर्विसेज यूज कर ली उसके लिए पे करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम सरकार क्या करती है, फर्म्स को सब्सिडी देती है, यानी कि सस्ते में सामान देती है। सो दीज आर बेसिकली द कंडीशन, सम ऑफ द की टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू थर्ड सेक्टर, थ्री सेक्टर मॉडल। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिमिटेड। अनसोल्ड गुड्स क्या होता है, ऐसे गुड्स जिसको व्हाट हैपेंस इफ द फर्म्स डोंट सेल एनीथिंग दे प्रोड्यूस, उसको हम लोग अनसोल्ड गुड्स बोलते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बारे में हम लोग जब जीडीपी और जीएनपी पढ़ेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे। अगेन लास्ट वाला जो सेक्टर है जिसमें हम लोग का फॉरेन की भी चीजें आ जाती हैं। तो आप ये मैप देख के थोड़ा फिगर आउट कर पा रहे होगे कि ऊपर तीनों वाला तो सेम है, बट फॉरेन में क्या होता है, देयर इज अ फॉरेन कंपनी दैट आल्सो, योर फॉरेन कंट्री आल्सो दैट कम्स इन अंडर द पिक्चर ऑफ दिस। अब फॉरेन रेमिटेंसेस क्या होता है, जो इंडिया के बाहर जो इंडियंस काम कर रहे हैं वो घर में अपने पैसे भेजते हैं, तो उसको हम लोग रेमिटेंसेस बोलते हैं। इंडिया के बाहर जो लोग बाग काम करें इंडिया से, वो इंडिया में जो पैसा भेजते हैं उसको रेमिटेंसेस बोलते हैं। इंडिया के लोग बाग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ से हम लोग बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट भी करते हैं। तो ये आप अगर बेसिक देखने जाओ फोर सेक्टर मॉडल, यू कैन गो थ्रू इट। इसमें इतना कुछ डिटेल में नहीं है, बस आप अगर बेसिक्स करोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अब कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या है, आपका ग्रेट डिप्रेशन में क्या हुआ था, केंशियन इकोनॉमिक्स क्या है, मॉन्ट्रिस क्या है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स क्या है, थोड़ा सा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आज का टेस्ट आप अटेम्प्ट कर लीजिए, कल की क्लास में दोबारा इस चैप्टर को खत्म करेंगे। सो without getting delayed, my request is kindly attempt the test once you finish watching this video, so that it will help you to revise। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको बाहर से पूछे गए होंगे, बट डोंट वरी, वंस वी कंप्लीट दिस एंटायर चैप्टर आपको सारे जो भी क्वेश्चन है वो समझ में आ जाएंगे। सो आज के चैप्टर के लिए इतना ही, कल हम लोग रिमेनिंग जो पार्ट है इसका खत्म कर देंगे, एंड जीडीपी जीएनपी वाला सेक्शन भी स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।